Leadership Academy, SCRT J&K. And today we have with us Mr. Nazir Ahmed Rashid sir, belongs to Blaze Watlab, Sopor, and a person who have worked on the ground, and at the same time he has been involved in the planning, management, monitoring and supervision process. Started his career after completing his university education in 1987 as a lecturer, then worked as a principal at different schools, and more importantly worked at Samagra Shiksha level starting from its inception 2011 onwards to 2018, then in Samagra Shiksha. And more importantly, Sai has worked at District Institute of Education and Trainings as a principal, and at the same time having the position of a Chief Education Officer, Pulwama. Sir, we welcome you. Thank you. In the studio of School Leadership Academy. Sir, at the outset, I will say that the Future of Education document of UNESCO, which states that जो हमारा education system है, which is meant for learning, and more importantly, the future of humanity as a whole and the planet. And Sustainable Development Goal 4.7 talks about quality of education and partnership for the goal. Sir, you have worked at different capacity, and you are the best person whom we can ask how to build collaborative leadership and how to build synergy between the stakeholders of education, like politicians. We have a community heads, we have a Samagra Shiksha, we have a businessman, we have a directorate, and more importantly SCRT. Sir, पहला चीज as a आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि why we have a need of collaborative leadership and synergy in the education system. शुक्रिया फयाज साहब. सबसे पहले it takes me back to I think 2018-19 when NUPA started Leadership Academy. I was posted in Ramsa and we started with 50 educational leaders. Then in collaboration with Cavalier, we extended this leadership program and we trained our leadership leaders at Piramal School of Leadership, Jhunjhunu, Rajasthan. That's long back, and since then a lot of time has passed, and now this has grown to a full academy, and I'm delighted to see that you are flourishing and you are touching rather the new heights. Now, so far as the school education department is concerned, school education department has its vast goals. School education department is going in a transition phase. Transition phase in the sense that now the responsibility of the teachers, now the responsibility of the heads of the institutions, it's becoming more complex and complex. Their role beyond classroom, their role beyond the school management, their role beyond the various initiatives, various matters of concern like drug abuses and other menaces, they have to play a vital role. And for playing an effective role, we need to develop the leadership qualities among our teachers, among our heads of the institutions, and in fact, I am of the belief that this leadership quality must be transmitted to our students also, because they are the main stakeholders. They form the raw material of our schools for our teachers to deal with. So these traits are to be passed into them, and teacher is the only source, head of the institution is the only source, school is the only source which can serve as that organization which can help us in achieving these. Surely, sir, you have laid the foundation of School Leadership Academy, and obviously it's your efforts, and today we are seeing School Leadership Academy in J&K. सर, इसमें आपने एक अच्छी चीज की, वो हमारे लिए मैटर ऑफ प्राइड भी होगा कि वी विल एक्सटेंड दिस प्रोग्राम टू सम ऑफ द स्टूडेंट्स आल्सो. सर, मैं जानना चाहता हूं कि आपके बहुत सारे चैलेंजेस आपको आए होंगे, क्योंकि आपको डील था एज ए समग्र शिक्षा में, जो आपने काम किया स्कूल्स के साथ, डैट्स के साथ, SCRT के साथ या डायरेक्टरेट्स के साथ. सर, क्या चैलेंजेस आपको आए? बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने फैज साहब.
क्योंकि जब तक हम इन सवालों का जवाब नहीं ढूंढेंगे हम आगे की प्लानिंग एक अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। हमें अपनी कमजोरियों को जानना होगा, इसलिए नहीं कि हम किसी के क्रिटिक हैं, हम सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं या अपने किसी ऑफिसर को क्रिटिसाइज करते हैं या अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं। हमें इन चीजों को, जो भी हमारे बोटलनेक्स हैं, जो हमारे लूप होल्स हैं, हमें उनको डिस्कस करना चाहिए। हम इसलिए डिस्कस करना चाहिए ताकि सो दैट वी कैन कम फॉरवर्ड विद अ बेटर सोल्यूशन। तो मैं आपको ये या अपनी एक्सपीरियंस की बुनियाद पे ये बताऊं कि मैंने एज प्रिंसिपल भी काम किया, मैंने एज स्टेट कोऑर्डिनेटर काम किया। स्टेट कोऑर्डिनेटर जब मैं रमसा में था, राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द रमसा टिल द स्कीम गॉट सबसम्ड अंडर समग्र शिक्षा, तब तक मैंने काम किया और इन डिफरेंट कैपेसिटीज काम किया। एज स्टेट कोऑर्डिनेटर एक्सेस काम किया, एज एडमिनिस्ट्रेटर काम किया, एज प्लानिंग ऑफिसर वहां पे काम किया, प्लान बनाते थे। यूडाइस मतलब कि जितने भी इंटरवेंशंस थे उनकी मुदाखलत में मेरा एक अहम रोल हुआ करता था। During this course of time, I learned so many things and I got transformed. मैं एक स्कूल क्लास टीचर से एक एडमिनिस्ट्रेटर बना और एडमिनिस्ट्रेटर से मैं एक प्लानर बना और प्लानर से मैं इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का एक अहम पार्ट बना। तो मैंने इम्पोर्टेंटली आप एक अच्छे लीडर हमारे सामने ये मैं नहीं कह सकता, शायद तौहीन होगी लीडरों की अगर आप मुझ जैसे नालायक को लीडर बोलेंगे, लेकिन फिर भी जरा नवाजिश आपकी। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में स्टेट में जितने भी हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं या डिफरेंट कैपेसिटीज में जो हमारे ऑफिसर्स हैं, अब 2011 से आज तक बहुत लंबा अरसा गुजरा है और सबके साथ मैंने काम किया। सबको पता है कि मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, मेरा एटीट्यूड क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा कैरेक्टर कैसा रहा है, मेरी डेडिकेशन कैसी रही है। एक खुली किताब की तरह है। आप किसी भी जिसके साथ बात करें, न सिर्फ कि इसी स्टेट में नहीं, अपने अदर 12 स्टेट के 22 डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं, बल्कि अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट में जाओगे, क्योंकि मैं मुंसलिक रहा जैसे हमारे प्रोग्राम्स थे। एक प्रोग्राम था हमारा स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, वहाँ मेरे ख्याल में अपनी इंडिया की तमाम रियासतों के साथ हमने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम किया। काफी अप्रिसिएशन भी हम JNK को मिली। एग्जैक्टली मेरे ख्याल में दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। तो उसी पीरियड के दौरान मेरे ख्याल में ये 17-18 की बात है, तो व्हेन द प्रोसेस फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द SCRT वाज इनिशिएटेड। और उस टाइम मेरे ख्याल में अनिल स्वरूप जी यूनियन सेक्रेटरी थे। उस टाइम उन्होंने अदर स्टेट के साथ एक MOU साइन किया था, जिसमें ये सारी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द SCRT और ये बाकी चीजें जो आज हम इनोवेशन देख रहे हैं, इट्स फाउंडेशन वाज लेड ड्यूरिंग दैट पीरियड। सर, इसमें एक अहम चीज है कि लीडरशिप में हम कहते हैं कि यू हैव टू लीड टीम्स एंड बिल्ड टीम्स, क्योंकि अकेले आपके साथ टीम होंगे। सर, आपने कैसे टीम्स को लीड किया और पहले कैसे बिल्ड किया और कैसे लीड किया सो दैट सिनर्जी, क्योंकि आपको डायरेक्टरेट से भी इंफॉर्मेशन चाहिए, SCRT डायरेक्ट से इंफॉर्मेशन चाहिए और उनका साथ चाहे टू बिल्ड, क्योंकि आपने JNK को रिप्रेजेंट किया मिनिस्टर लेवल पे। आपने कैसे टीम्स को बिल्ड किया और लीड किया? इसके लिए सब आपको कुर्बानी देने की जरूरत है। मैं आपको कुर्बानी क्या देने की जरूरत है कि आपको अपने आप को भूल जाना है। आपको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं घरेलू लेवल पे आपको उनको भूल जाने का मतलब कि मैं आपको ये बताऊं कि मेरी जब मैं रमसा में था तो माई कलीग्स कैन कन्फर्म इट, तो हम 9 बजे वहां पहुंचते थे और रात के 10-11 बजे तक हम काम करते थे, करीबन 12 बजे तक काम करते थे। और उसके बाद दूसरे दिन अगर हम किसी दिन 1 बजे भी निकले तो मेरे SPD का ये ऑर्डर फरमान होता था कि रेशी साहब कल डॉट 9 बजे डॉट। मैं भी आज बहुत सारी टाइम पे मैं भी डॉट इस्तेमाल करता हूँ। जब भी मैं अपने सबऑर्डिनेट्स को बोलता हूँ कि कल 9 बजे आने, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ कि डॉट 9 बजे। और हम बिल्कुल पहुंच जाते थे। मैं जब यहाँ पे सोपोर से आता था तब भी आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिपोर्ट डायरेक्टरेट। मैं 9 बजे सबसे पहले आता था। तो मतलब कि उसके बाद आपको पूरी जो आपकी जिंदगी है वो आपको डेडिकेट करनी है आपकी सर्विसेज की। आपको पूरा इन्वॉल्व स्टार्टेड फ्रॉम द सेल्फ, क्योंकि लीडरशिप में ही है कि स्टार्ट फ्रॉम द सेल्फ। हाँ, अपने आप को चेंज करना है। सबसे पहले अगर आप किसी दूसरे को कहोगे कि आप ये चीज करो, अगर आप में वो खुद में वो क्वालिटी नहीं है तो आपका उसको कहना मेरे ख्याल में माने नहीं रखता। इसलिए सबसे पहले लीडरशिप के लिए बेसिक जो फंडामेंटल है कि आपको खुद को चेंज होना है। जब आप खुद चेंज हो जाओगे तभी दूसरे आपकी वो चेंज देख के आपस में अंदर में वो आपकी उस चेंज को अडॉप्ट करेंगे।
सर मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि टुडे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टॉक्स अबाउट इनोवेशंस, इनोवेशन एंड सो इन ग्रास रूट लेवल। सर आपने एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ प्लानर, आपने कहाँ पे कौन सी इनोवेशन जो आप हमारे ऑडियंस, स्पेशली जो हमारे हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन है, उनको कहेंगे कि हाउ यू हैव टू लेड द इनोवेशन? फैज साहब, इनफैक्ट मुझे आपका इस बात के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप कुछ इनोवेशन जो हमने की हैं, जो आज लाइमलाइट में नहीं है, जिनको कोई याद भी नहीं करता है, तो उनकी याद दिला दी। मैं आपको बताऊं कि एक पीरियड था कि जब हम यहाँ पे ट्रेनिंग्स का दौर शुरू हुआ था, तो ट्रेनिंग जब आई थी सेकेंडरी लेवल पे, तो रमसा के वसात से आई थी। तो उस टाइम हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि हम अपने टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे, लेकिन हम रिसोर्स पर्सन बाहर से लाएंगे। आईआईटी कानपुर से हमने एचसी वर्मा को लाया था, उसकी पूरी टीम को लाया था, और एचसी वर्मा अपनी आईआईटी कानपुर की पूरी टीम के साथ हमारी स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में चले गए, अरेस्ट वाइज स्टेट के 22 डिस्ट्रिक्ट में चले गए, लेह चले गए, करगिल चले गए, कश्मीर के सारे डिस्ट्रिक्ट में चले गए, और जम्मू के सारे डिस्ट्रिक्ट में चले गए, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने ट्रेनिंग दी और लीडर्स पैदा किए, रिसोर्स पर्सन पैदा किए। और उसके बाद ये एक इनोवेशन थी। उसके बाद हमने मुझे अच्छी तरह से याद है स्वागत विश्वास सर के टाइम पे, तो हमने ये ब्रिटिश काउंसिल फ्रॉम कलकत्ता लाए थे हम, और उनकी वसातत से हमने यहाँ पे अपने इंग्लिश टीचर्स को ट्रेन करा दिया, उनको वो एक्सपोजर दे दिया। उसके बाद हम डिफरेंट और केवलिया के साथ हमने वो कोलैबोरेशन की थी। हुमाना पीपल टू पीपल के साथ हमने किया था कोलैबोरेशन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए। इसी तरह से प्रथम के साथ एसएससी के वसादत से किया था। मतलब कि बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज थे जिनको हमने लागू किया, और जो लेटेस्ट टेक्निक्स थी हम अडॉप्ट करना चाहते थे कि हम वी वांटेड टू कीप अ पेस with what's happening in rest of our सर आपने एक नाम का जिक्र किया, एचसी वर्मा, जो almost all the students across J&K, especially physics, they know the name and sir have started that. That's basically top level leadership has to do. सर more important, यहाँ आपकी बात काटते हुए सर मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि हमने एक शंकर गोयनका जी वाउ फैक्टर्स के थे, तो उनकी वसातत से हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में ब्रेन मैपिंग स्टूडेंट्स की करवाई थी, उसके वर्कशॉप करवाई थी। तो वो इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, और उसका एक नाम है, इंटरनेशनल रिप्यूट पर्सनैलिटी है, उसको भी इन्वॉल्व किया, वो भी आ रहे थे। तो और सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि हमारे सेक्रेटरी साहब साहू साहब जब थे, तो हम जब रिसोर्स पर्सन लाते थे, तो सेक्रेटरी साहब खुद आके मेरे पास बहुत सारी ऐसी वीडियोस पड़ी हैं जहां पे सेक्रेटरी साहब वही ना क्लासरूम में टूल पे बैठे हैं, हम भी साथ हैं, हमारे बाकी ऑफिसर्स भी साथ हैं, और हम बैठे हैं कि और खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस तरह से डिलीवरी हो रही है। मतलब कि बहुत सारे इनोवेटिव मैथ किट्स और साइंस किट्स का कांसेप्ट आपके टाइम से एग्जैक्टली सबसे पहले हमने एचसी वर्मा सर से ले लिया था साइंस किट हमने ले लिया था, और पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में वो पेडागोजी का जो नजरिया है वो चेंज कर दिया। हाँ एग्जैक्टली सर। अब एनईपी के हवाले से सर मैं आप चाहता हूं कि एनईपी वांट्स कि देयर शुड बी अ कोलैबोरेशन, देयर शुड बी अमंग द स्टेक होल्डर्स। सर उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हाउ वी शुड लीड दिस कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग? सर जैसे आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल की हैं फ्रॉम एचसी वर्मा सर से लेके ब्रिटिश काउंसिल और डिफरेंट एनजीओज के साथ कोलैबोरेशन करके, सर हाउ टू क्रिएट दिस सिनर्जी? हाँ एक मुझे लगता है कि पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि मैं कितना सही हूँ, लेकिन आई फील लाइक इट, तो आई कॉल ए स्पेड जो मुझे लग रहा है कि मुझे वो कहना चाहिए। मुझे लगता है कि इस वक्त हमारे एजुकेशन सिस्टम में किसी चीज की कमी नहीं, पैसों की कोई कमी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोई कमी नहीं, ट्रेनिंग्स की कोई कमी नहीं, ह्यूमन रिसोर्स की कोई कमी नहीं, मतलब एवेन्यूज की कोई कमी नहीं, एक्सपर्टाइज की कोई कमी नहीं। कमी अगर एक है, वो सिर्फ एक कमी है, वो सिनर्जी की। मुझे लगता है अगर ये चीज आ जाए, मैं आपको बताऊंगा सिनर्जी से मुराद क्या है। सबसे पहले जरा इसको तो हम थोड़ा अनलॉक करें। सिनर्जी से मतलब कि हम एक टीम की सूरत में काम करें, क्योंकि इंडिविजुअल एफर्ट्स विल नॉट गिव यू सो मच in comparison to the combined efforts.
जब हमारा मकसद एक है, अगर आप SCERT को ले लोगे, किसके लिए काम करें? बच्चों के लिए काम करें। अगर आप समग्र को ले लो, किसके लिए काम करें? बच्चों के लिए काम। अगर आप डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन को ले लोगे, किसके लिए काम करें? बच्चों के लिए। मतलब कि हमारा 3 डायरेक्शन से हम पेनिट्रेट कर रहे हैं और फोकल पॉइंट हमारा सेम। तो जब हमारा फोकल पॉइंट सेम है तो हम मतलब कि तीनों की ये कोशिश है कि हमारा बच्चा डेवलप हो जाए। जब हमारा बच्चा डेवलप हो जाए और हम इंडिविजुअली उसको टारगेट करेंगे, बजाय इसके कि हम एक टीम की सूरत में उसको टारगेट करें। अगर हम उसको एक टीम की सूरत में टारगेट करते हैं तो हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। Exactly. मैं आपको एक मिसाल देता हूं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मेन स्टेक होल्डर है एजुकेशन का। इसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने SCERT दिया और समग्र दे दिया। जब समग्र बना तो जब समग्र का रोल डिफाइन हो रहा था और उसी टाइम SCERT भी रोल बन रहा था, तो जब इस डॉक्यूमेंट पे बात हो रही थी तो फिर हमने उस टाइम भी पूछा था कि समग्र का रोल क्या रहेगा, क्योंकि समग्र डायरेक्टली जब मैं था तो एज RMSA में या SSA डायरेक्टली हम ये इंटरवेंशन इंप्लीमेंट करते थे, चाहे वो ट्रेनिंग थी, चाहे वो कैपेसिटी बिल्डिंग थी, चाहे वो वर्कशॉप था, चाहे अवेयरनेस थी, तो डायरेक्टली हम काम करते थे। लेकिन अब जब SCERT वजूद में आए तो ये चीजें डायरेक्ट समग्र इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, इसकी वसादत से कर रहा, SCERT की वसादत से कर रहा। तो फिर जब हमने पूछा कि समग्र का रोल क्या रहेगा, बोला यहाँ पे SCERT के जो कंपोनेंट्स है वहां पे ये एक फंडिंग एजेंसी काम करेगी। मतलब कि फंडिंग एजेंसी काम करेगी, रिलेटेड है। जब तक गाड़ी में तेल नहीं होगा गाड़ी चलेगी, इसलिए समग्र का एक बहुत अपना एक रोल है। अब आप ले लेंगे SCERT। SCERT एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। SCERT का शायद मुझे लगता है कि हम लोग भूल गए हैं SCERT को समझने में। SCERT को हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एस्टेब्लिश्ड विंग है डाइट के नाम से, और SCERT का काम जो होगा और जो वो काम आगे स्कूलों में करने जाएंगे, दैट विल बी द रिफ्लेक्शन ऑफ द डाइट्स। इसलिए हमारी डाइट्स को एम्पावर होना बहुत ही जरूरी है। डाइट्स का रोल बहुत जरूरी है। अगर हमें क्वालिटी अचीव करनी है, क्वालिटी जो NEP 2020 का जो मेन गोल है क्वालिटी का, अगर उसको अचीव करना है तो आपको डाइट्स को एम्पावर करना होता है। डाइट्स को एम्पावर करने का मतलब ये नहीं है कि वहां पे एक खूबसूरत सी 7 मंजिला इमारत बना दें आप, वहां पे आप सोफे लगा लें। वहां पे आपको एक्सपर्ट्स चाहिए। वहां पे जो एक्सपर्ट्स आप पोस्ट करें उनको एक विजन होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि मैं डाइट में किस लिए हूं। मैं डाइट में इसलिए नहीं हूं कि मुझे क्लास पढ़ाना है, मुझे उसको डाइट में रिसर्च करनी, उसको डाइट में प्लानिंग करनी, उसको डाइट में रिलेट टू हिज डिस्ट्रिक्ट तमाम चीजें कोरिलेट करनी है और रिसर्च की बुनियाद पे ही हैज टू कम अप विद अ डॉक्यूमेंट, तो ताकि आगे चल के वो इम्प्लीमेंट हो जाए और गवर्नमेंट के पास चला जाए वो डॉक्यूमेंट। एंड सर पॉलिसी काइंड ऑफ पॉलिसी ड्राफ्ट टू द गवर्नमेंट। एग्जैक्टली सर जाते जाते सर आपने एक अहम चीज की कि वी हैव टू एम्पावर द टीचर एजुकेशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सर मैं चाहता हूं सर आपके टेन्योर में एज अ स्कूल लीडर, एज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, व्हाट आर द की अचीवमेंट्स जो आप शेयर करना चाहते हैं, जिसको आपको प्राउड है कि अवर दिस फ्यूचर हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस और जो एग्जिस्टिंग हेड्स ऑफ दे विल फॉलो दिस स्टेप सो दैट दे कैन अचीव द गोल सेट बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सबसे पहले एज ए लीडर मैं बताऊंगा, अगर आपको एज ए लीडर सक्सेस होना है तो आपके 2 रूप होने चाहिए। जब आप अपने इंस्टीट्यूशन से बाहर हो तो आप एक दोस्त हैं, लेकिन जब आप अपने ऑफिस में आ गए तो आप एक सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं। वहां पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं है आपको कि कौन दोस्त है, कौन अपना है, कौन पराया है। और दूसरी बात कि आपको एक ही रॉड इस्तेमाल करनी है, सबके लिए एक ही रॉड इस्तेमाल होनी चाहिए। ये मेरे ख्याल में बेसिक चीज है जो एक एडमिनिस्ट्रेटर। सर मैं चाहता हूँ कोई हाईलाइट जो आपने अपनी टेन्योर में डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में की हो, जिससे लग रहा है कि दिस इज द प्राउड मोमेंट फॉर मी। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन एक चीज है कि अगर आप जानना ही चाहते हैं तो पुलवामा की दूर दराज इलाके की किसी टीचर से पूछें। So that's a true essence of a leadership. You need आप to. उससे पूछें। So that's a great. और अगर आप उससे भी ज्यादा और भी डेप्थ में जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछें। और फिर अगर वहां से भी, जैसे आपने बोला था कि सिनर्जी में हमारे पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हैं, हमारे पीआरआईज भी इन्वॉल्व हैं, हमारे पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, हमारे तरह तरह की कम्युनिटीज के इन्वॉल्व हैं। आप किसी भी कम्युनिटी से बात करें। ट्रूली सर, दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ लीडरशिप। एंड सर, जाते जाते एक मैसेज फॉर ऑल हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बस मेरी यही एक मैसेज होगी कि अपना ज्यूरिसडिक्शन जानिए। आप अपना ज्यूरिसडिक्शन जब जानेंगे ना, तो फिर आपको एक टीचर की एब्सेंस के लिए अपने डायरेक्टर को शिकायत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि फैसला आप करेंगे। आपके पास पावर है, आप यूज कीजिए उसको और फैसले लीजिए। फैसला चाहे अगर आप फैसला लेंगे अगर वो गलत भी होगा, लेकिन आपकी नीयत अगर ठीक है तो आप उससे मत डरिए, फैसले लीजिए।